try to understand. We understood law of DMU, diminishing marginal utility. मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है, वो वाला लॉ देखा. When a consumer consumes commodities one after another, the utility that he gets from the additional unit decreases, and that concept is called as diminishing marginal utility. The additional benefit, law says that the additional benefit that the consumer gets from the additional unit of the commodity, right, decreases with the addition to the stock that he already has. उसके पास commodities increase होने से उसकी utility decrease होती है. That is diminishing marginal utility concept, and this is applicable everywhere. कोई भी चीज बहुत ज्यादा होने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है. This is very psychological. Now, thereafter we understood the consumer surplus. Consumer surplus is, right, the benefit that consumer gets because he is ready to pay some amount, but he actually pays less than that. Consumer surplus is the excess of what he is ready to pay over what he actually pays. So suppose he is ready to pay 100, but he has to pay just 40 rupees. I will say consumer is in surplus of rupees 60. The consumer surplus concept is derived from law of DMU only. So मैं डायग्राम फिर से समझाता हूं, ध्यान देना. This is for revision. This is y axis, मतलब utility axis, mu axis, marginal utility axis. This is quantity axis, quantity consumed axis. Quantity consumed. This is marginal utility, mu. This is marginal utility curve, mu curve. So the entire area, ये जो area है ना below the marginal utility curve, ये पूरा area, this area represents total utility from this unit to this unit. Because, right, consumer will not buy the units after this, because यहाँ पे utility from that commodity is 0. So if I assume consumer has consumed these many units, OB units, then his total utility is this AOB. However, हमें understand ये चीज करनी है कि will consumer go to OB units? Will he actually buy OB units? Consumer buys units, right, up to he reaches equilibrium. अगर OB unit के पहले ही, OB unit से suppose 100 units, OB is 100 quantity, अगर उसके पहले ही अगर वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, he will not go to buy 100 units. He will stop his consumption when he reaches his equilibrium. And हमें पहले वो समझना है, ध्यान देना. Therefore, suppose this is your price line. OP is the price line. बराबर? And we have understood that consumer equates price with the utility. He equates marginal utility of the commodity. उसको कितना benefit मिल रहा है उस commodity purchase करने के बाद, consume करने के बाद, versus what he has to pay for that commodity, the price of the commodity. वो consume करेगा तो कितना benefit मिलेगा उसकी वजह से, उस commodity की वजह से, and उसके लिए कितना pay करना पड़ेगा. I am just talking about that additional consumption, additional unit.
Try to understand. So that is called as like additional benefit that I will get when I consume additional unit versus the additional price that I have to pay, the price. So any point from point A to suppose this point C, यहां पे अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, you will find the utility is more than the price you pay. Utility is this total vertical perpendicular line and price is this. So this is your surplus. Area above surplus is area above the price is the surplus. अगर आप ये पॉइंट लेते हो, ये जो पूरा परपेंडिकुलर है ये आपकी यूटिलिटी है उस कमोडिटी से, आप उसके लिए इतना पे कर रहे हो, दिस विल बी योर सरप्लस. यहां पे ये जो कमोडिटी रहेगी सी पे OQ सपोज, यहां पे the price that he pays and the utility that he gives is equal. यहां पे marginal utility is equal to price and he will not buy more than this commodity. यहां पे रुकेगा. He will buy only if price falls down. Price नीचे होती है तो equilibrium फिर से disturb हो जाएगा and to like equate the utility with the price he will buy more. अगर प्राइस ऊपर जाती है तो ही विल बाय लेस. क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, अगर प्राइस ऊपर जाएगी ही विल बाय लेस देन OQ. अगर प्राइस नीचे जाती है ही हैज टू बाय मोर देन OQ. एट प्राइस OP he will buy OQ units because at that level the price equates with the marginal utility from that unit. OQ unit की जितनी यूटिलिटी है, OQth unit की जो भी यूटिलिटी है MU is equal to price of OQth unit. And यहाँ पे वो स्टॉप करेगा. So he will not buy OB output, वो बाय नहीं करेगा. He will buy just which, right, OQ output. वो OB बाय नहीं करेगा, OB तक जाने की जरूरत ही नहीं. Before that he will achieve equilibrium. यही मैं आपको समझाना चाहता हूं. बच्चों को लगता है कि वो OB आउटपुट तक परचेस करेगा बिकॉज वहां पे सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होता है. मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के चक्कर में आप लॉस में जाओगे. कैसे जाओगे वो भी दिखाता हूं, ध्यान देना. सो हाँ, दिस एरिया प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज एन एक्सपेंडिचर. And this area ध्यान देना, AOQC. अच्छा आपको दिखाना मुश्किल है. हाँ ओके दिखा सकता. हाँ एरिया AOQC ये वाला एरिया हाईलाइट कर रहा हूं, देखो AOQC दिख रहा है. ये वाला एरिया आपकी टोटल यूटिलिटी है फ्रॉम OQ आउटपुट. एंड OQ आउटपुट परचेस करने की कॉस्ट इतनी है, ये रेक्टेंगल. सो आपको इतना खर्चा करने से इतना सारा बेनिफिट मिल रहा है, तो सरप्लस कितना हो गया? दिस ट्रायंगल इज सरप्लस. समझा? सो लिख लेना, एरिया AOQC इज टोटल सेटिस्फैक्शन और टोटल यूटिलिटी. अच्छा मैं यहां पे लिखता हूं, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम at OQth unit. He will not go to OB output. उतना यूनिट कंज्यूम ही नहीं करेगा. OQ के बाद स्टॉप, बिकॉज वहां पे प्राइस एंड यूटिलिटी इक्वेट हो रही है.
Therefore, area AOQC is total utility. Area POQC is total expenditure. And what is the consumer surplus का formula? What you are ready to pay minus what you pay. You are ready to pay this much. You are ready to pay this much area. ये AOQC ये पे करने को रेडी हो. पे कितना करना पड़ रहा है? POQC. सो आप पे करने के लिए ज्यादा रेडी हो, बट पे कम करना पड़ रहा है. सो जो बाकी एरिया बच रहा है, दिस ट्राइंगल इज कंज्यूमर सरप्लस. तो यहां पे लिखता हूं, दिस इज कंज्यूमर सरप्लस. ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस. देयरफॉर ट्रायंगल एपीसी. ठीक है, आगे consumer do not try to attain maximum satisfaction. Consumer tries to be in equilibrium. अब मैं वो प्रूव करके दिखाता हूं. लिख लेना, मैंने कल एक सेंटेंस एंड में बोला था. आई विल रिवाइज. कंज्यूमर सरप्लस इज ए एरिया बिलो एमयू. एरिया बिलो एमयू, ये वाला एमयू के नीचे. हाउएवर अबव द प्राइस, बिलो द एमयू अबव द प्राइस, मतलब ये वाला ट्रायंगल. कंज्यूमर सरप्लस इज ए एरिया बिलो एमयू अबव द प्राइस लाइन. ठीक है, ये क्लियर है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस जो कल हमने किया. देन नाउ आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. लेट्स सी. ठीक है, देखते हैं. लिख लेना. मैं कुछ भी वैल्यू लेता हूं. क्वांटिटी कंज्यूम्ड, एमयू, टीयू, ये प्राइस लिखता हूं पहले. हाँ, फर्स्ट यूनिट 30, second unit 20, third unit gave 10, fourth unit gave 0, fifth unit gave -5. ठीक है, price of each unit is 10. ठीक है, एक सेकंड. कंज्यूमर सरप्लस each from each unit. 20, 30 minus 10. 10 पे करके 30 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. 10 पे करके 30 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. 20 सरप्लस. नेक्स्ट के लिए 10 पे करके 20 का सेटिस्फैक्शन 10. थर्ड के केस में 0 सरप्लस. सो जो यूनिट 0 कंज्यूमर सरप्लस देगा, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, जो यूनिट 0 कंज्यूमर सरप्लस देगा वो इक्विलिब्रियम होता है. मतलब एमयू शुड बी इक्वल टू प्राइस. आगे यहां पे 10 पे करके 0 मिलेगा, -10 सरप्लस है. यहां पे 10 पे करके -5 सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दिस इज -15. टोटल यूटिलिटी. अच्छा, मैं यहाँ पे टोटल कंजम्पशन लिखता हूं. ओके, दिस इज टोटल सरप्लस. टोटल सरप्लस फर्स्ट यूनिट से 10, 2 यूनिट से मिला के 30, 3 यूनिट्स मिला के 30, 3 यूनिट्स मिला के 30. ठीक है, फोर्थ यूनिट मिला के 30 माइनस 10 है, वो 20 हो जाएगा. एंड 5 यूनिट मिला के 20 माइनस 15, 5. 30
30, 25 लाइक दिस। आगे सो आपको ज्यादा सबसे ज्यादा सरप्लस कहां पे मिल रहा है, सबसे ज्यादा आपका फायदा कहां पे, कंज्यूमर का फायदा कहां पे, सरप्लस मतलब फायदा, सबसे ज्यादा फायदा यहां पे दिख रहा है, सबसे ज्यादा फायदा यहां पे मींस एट दिस लेवल। when he is in a maximum surplus, when price is equal to mu, प्राइस इज इक्वल टू mu। ठीक है, अच्छा टोटल यूटिलिटी देखते हैं। फर्स्ट यूनिट से 30 रुपीज की सेटिस्फैक्शन, फिर 50, फिर 60, फिर 60 एंड देन 55। टोटल सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पे, दिस व्हेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज ए पॉइंट वेयर mu इज 0। क्या लिख रहा हूं ध्यान देना, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन right when mu is 0, that is fourth unit, and maximum surplus is when mu is equal to price, that is third unit। आप मुझे बोलो एज ए कंज्यूमर विच विल यू प्रेफर, बिकॉज आप बोलोगे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है तो मैं वहां पे जाऊंगा, बट सेटिस्फैक्शन कम्स एट ए कॉस्ट, यू हैव टू पे फॉर इट, फ्री में नहीं मिल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप खाली सेटिस्फैक्शन देखोगे तो यू आर मिसलीडिंग, बिकॉज सेटिस्फैक्शन कम्स विद ए कॉस्ट, यू हैव टू पे फॉर दैट। सो यू शुड ऑल्सो कंसिडर कॉस्ट। सेटिस्फैक्शन आप खाली एक साइड देख रहे हो, गेन, वो गेन के लिए यू हैव टू स्पेंड एज वेल, एंड देयरफॉर ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चक्कर में पड़ोगे ना तो आप फोर्थ यूनिट परचेस करके बैठोगे, योर टोटल सरप्लस विल डिक्रीज फ्रॉम 30 टू 20। सरप्लस मतलब प्रॉफिट है आपका, कंज्यूमर का प्रॉफिट है वो। सो कंज्यूमर विल स्टॉप at third unit only, and not he will not try to achieve maximum satisfaction, he will try to be in equilibrium। try to understand, वही तो मैं समझा रहा था, he will not go for the fourth unit, mu is equal to 0 की तरफ नहीं जाएगा, mu is equal to प्राइस के यहां पे रुकेगा, थर्ड यूनिट पे ही वो रुकेगा। try to understand, एंड बहुत बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि mu राइट, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द टोटल सेटिस्फैक्शन। उनको लगता है टोटल सेटिस्फैक्शन मतलब सब कुछ जीत लिया, अरे नहीं। एंड देयरफॉर ट्राई टू अंडरस्टैंड, एज ए रैशनल कंज्यूमर you won't try to achieve maximum satisfaction, you will try to achieve maximum consumer surplus। लिख लेना, a rational consumer right tries to achieve maximum consumer surplus, and into bracket लिखना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उसको कट करके लिखना, मतलब क्लिक होगा, दोनों में डिफरेंस है, कट कर दो उसको, एंड ये उसका प्रूफ है। ठीक है, सो डोंट ट्राई टू अचीव पॉइंट ऑफ सैटिटी, उसके पहले ही आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, वहां पे ही रुको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यू शुड स्टॉप एट थर्ड यूनिट, एंड यू शुड नॉट, वैसे भी आप फोर्थ यूनिट के आगे गए मतलब आप गधे ही हो, फोर्थ यूनिट के आगे जाना ही नहीं। इन दिस एग्जांपल मैं बोलता हूं फोर्थ भी नहीं जाना है, उसके पहले ही रुकना है। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट, क्लियर है? नाउ इसी डायग्राम को लेके मैं और एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, लॉ ऑफ डिमांड।
How law of demand curve is derived from DMU, like diminishing marginal utility curve या marginal utility curve. डेरिवेशन ऑफ, ये मैं आपको समझा रहा हूं, ये बुक में नहीं लिखा है. डेरिवेशन डिमांड कर्व फ्रॉम DMU कर्व, यूटिलिटी कर्व, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कर्व. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज दिस इज 10 रुपीज. ठीक है, नाउ एंड दीज आर, एग्जाम्पल के तौर पे दीज आर 30 यूनिट्स. ठीक है, सो ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं. हमने लॉ ऑफ डिमांड के देखे थे, व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. उसके 4 रीजन देखे थे. व्हाई डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सबसे पहले देखा था प्राइस इफेक्ट, दैट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट. दूसरा हमने देखा था ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू. तीसरा राइट हमने देखा था मल्टीपल यूजेस. मल्टीपल यूजेस, एक कमोडिटी राइट कैन बी पुट टू मल्टीपल यूजेस. उसके केस में जब प्राइस डिक्रीज होगी तो हम ज्यादा यूज करेंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगी तो हम इंपॉर्टेंट चीजों के लिए यूज करेंगे, देयरफॉर उसकी डिमांड कम हो जाएगी. एंड फोर्थ रीजन था एंट्री ऑफ न्यू कस्टमर्स, न्यू कंज्यूमर्स. ये 4 रीजन थे फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. अगर आप भूल गए हो मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो. ठीक है, दीज वर द 4 रीजंस मैं राइट फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. अब मैं जो सेकंड पॉइंट था ऑपरेशन ऑफ डीएमयू इज अ रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, वो मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना. वेन मैं यहां पे लिखता हूं प्राइस and the quantity consumed, demanded and consumed by the consumer. When price is 10, he is buying 30 units. Why? Why is buying 30 units? Because at 10 price, his utility is equal. वहां पे प्राइस लाइन, ये जो प्राइस लाइन है ये वाली, एंड ये जो आपकी ऐसे कर्व निकालनी नहीं चाहिए, मैंने एरो नहीं दिखाना चाहिए, समझाने के लिए कर रहा हूं. या चलो एक सेकंड, दिस इज योर प्राइस लाइन, दिस इज योर प्राइस लाइन, समझ में आ रहा है. एंड दिस इज योर विच यूटिलिटी कर्व, बराबर ना. सो दोनों जहां पे इक्वल है, दिस पॉइंट इज सी, वहां पे कंज्यूमर रुकेगा बिकॉज वहां पे प्राइस एंड राइट प्राइस एंड यूटिलिटी आर सेम. इफ प्राइस इंक्रीज होती है 15 होती है, नाउ दिस इज न्यू प्राइस लाइन, दिस इज न्यू प्राइस लाइन. तो नाउ कंज्यूमर का सरप्लस सी पॉइंट पे नहीं रहेगा. नाउ कंज्यूमर का सरप्लस इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा. कौन से पॉइंट पे? सपोज दिस इज डी. सो व्हेन प्राइस इज 15, आई विल टेक द क्वेश्चन, 2 मिनट. व्हेन द प्राइस इज 15, he will buy less than 30. Suppose this is 25 units. I will take some x, I don't know क्या लेना है. ठीक है, 25. When price further increases, प्राइस फर्दर इंक्रीजेस, एग्जांपल 20 हो जाती है. अगर प्राइस और इंक्रीज होती है 20, तो व्हाट इज द न्यू प्राइस लाइन? दिस.
यूटिलिटी तो जगह पे रहेगी ना, बट विल कंज्यूमर बाय नाउ, विल ही रिमेन एट पॉइंट्स डी? नो, दिस इज न्यू प्राइस लाइन. His his consumer surplus is a maximum at this point. Try to understand. यहां पे आके वो रुकेगा. Suppose that is E, and now he will buy this much. Z, suppose Z नाम दिया, that is 20. So when price is 20, he is ready to buy 20 units. So देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं. जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है, ऑब्जर्वेशन है आपका, जिस पहले प्राइस इतनी थी, तो दिस एंटायर एरिया और जो सरप्लस, जैसे प्राइस इंक्रीज होगी, प्राइस अब इतनी हो गई, द एरिया रिड्यूस, फिर प्राइस और इंक्रीज हो गई, एरिया रिड्यूस हो गया. इसका ही मतलब एज प्राइस इंक्रीजेस द सरप्लस डिक्रीजेस, एज प्राइस इंक्रीजेस कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीजेस. उल्टा. अब देखो यहां पे सपोज प्राइस डिक्रीज होती है, दिस इज द न्यू प्राइस. सपोज प्राइस बिकम्स 5 रुपीज. नाउ उसका सरप्लस ये आ जाएगा, विच इज, अरे लेता हूं क्वेश्चन, 2 मिनट तो रुको, ठीक है. विच इज सपोज EF, F is the unit. So now obviously that is more than the earlier. X, Y, Z, अब इसको कुछ भी नाम देते हैं, T नाम दे दिया, 35 units. So when price is 5, quantity demand is 35. क्या मिला रे आपको? What you got? As price decreases or price increases, quantity demanded, प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, क्वांटिटी डिमांडेड 35 टू 30, 30 से 25, 25 से 20. या जब प्राइस डिक्रीज होती है 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5, राइट. आप देखो डिमांड 20 से 25, 30, 35 हो रही है. अब लिख लेना यहाँ पे, लिखो, ये डिमांड शेड्यूल आ गया. यस, लिखो, एज प्राइस इंक्रीजेस कंज्यूमर सरप्लस विल डिक्रीज. जैसे प्राइस ऊपर जाएगी, एरिया विल डिक्रीज, कंज्यूमर सरप्लस विल डिक्रीज, एंड देयरफॉर कंज्यूमर विल बाय लेस. ऑब्वियसली अगर उसका सरप्लस ही नहीं मिलेगा तो वो क्यों बाय करेगा. एंड एज प्राइस डिक्रीजेस, जब प्राइस कम हो जाएगी, हिज सरप्लस विल इंक्रीज, एंड देयरफॉर ही विल बाय मोर. यही तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है. And therefore we say law of demand is based on, right, which law of demand is based on, right, law of demand is based on law of DMU. ठीक है. स्किन बहुत लैग हो रही है क्या मेरी? ठीक है. What I have explained that as price will increase, consumer का, right, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा. जब प्राइस 10 से 15 हो गई, उसका इक्विलिब्रियम C से D शिफ्ट हो जाएगा. फिर जब ऊपर और प्राइस जाएगी, उसका फिर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम. सो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है, सरप्लस डिक्रीज हो रहा है, एंड देयरफॉर ही विल बाय लेस. एंड अगर प्राइस डिक्रीज होती है, उसका सरप्लस नीचे, उसका इक्विलिब्रियम नीचे शिफ्ट हो जाएगा. सर आपका इक्विलिब्रियम कहां पे है? आपका इक्विलिब्रियम है, राइट, आपका इक्विलिब्रियम है, राइट,
जहां पे आपकी प्राइस इज इक्वल टू राइट यूटिलिटी। आपका इक्विलिब्रियम होता है जहां पे आपकी प्राइस एंड यूटिलिटी इक्वल होती है, ठीक है। सो लेट मी अगेन शेयर माय स्क्रीन, होपफुली अब दिखेगा। सो ठीक है, नो कैन यू सी माय स्क्रीन? कैन यू सी माय स्क्रीन? प्लीज कंफर्म। ओके, ठीक है। एंड दैट इज अ रीजन, राइट, दिस इज नथिंग बट अ डिमांड शेड्यूल। एज प्राइस इंक्रीजेस कंज्यूमर सरप्लस विल डिक्रीज। कॉमन सेंस है, प्राइस ज्यादा होगी तो हमें ज्यादा पेड करना पड़ेगा, तो सरप्लस डिक्रीज होगा। एंड अगर प्राइस कम रहेगी तो सरप्लस ज्यादा मिलेगा, ठीक है। एंड कंज्यूमर विल बाय मोर। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड व्हिच सेज इफ प्राइस इज लेस क्वांटिटी डिमांड, राइट। अच्छा अच्छा, व्हेन प्राइस इज मोर quantity demanded will be less, when the price is less quantity demanded is more, ठीक है। So that is the answer. So I will take one or two questions. एक सेकंड, अपने इसमें थे जिनके पास नोट्स है दे कैन ओपन द नोट्स। निकालो नोट, चलो जल्दी। हम्म, दिस वाज अ डायग्राम, एक डायग्राम थी। यस, पेज नंबर है नोट्स में 47। जिनके पास नोट्स है ओपन पेज नंबर 47, ठीक है। आई नो स्क्रीन इज लैगिंग एक्चुअली, मुझे लग भी रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 323 to question number 325, refer the following figure. They have given you price, that is mu. This is price. Mu is measured in terms of price. Price and mu दिया उन्होंने. This is amount of the commodity. This is amount of the commodity. ठीक है. This is D. चाहे तो मैं यहाँ पे पॉइंट ठीक से निकाल दूं. D. This is R. ठीक है. This is D. DD is a demand curve. इसको D1 लिखा है शायद से उन्होंने. This is O. This is Q. And this is P. ठीक है. देखते हैं. The question is, the total utility is represented by the area. Total utility is represented by the area. You have to ping me the answer. A, B, C, D. Total utility कौन से एरिया से represent कर रहा है? चलो जल्दी. Which is the total utility area? सोचो, what is the total utility? Total utility is that area below, entire area below which, right? Margin utility curve. So this is D, O, ये वाला एरिया. D, O, Q, R, ये वाला. दिस एंटायर एरिया इज अ टोटल यूटिलिटी. यहां तक मत लेना, यहां हम जाने वाले नहीं है, हम इस एरिया में घुसने वाले नहीं है, बिकॉज हम वो परचेस नहीं करने वाले. मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू एमयू. मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू एमयू. उसके आगे जाने वाला नहीं मैं. आई वोंट बाय मोर देन ओक्यू क्वांटिटी इन एनी केस. सो दिस एरिया is my, so O Q R D. So C is the answer. The given price is dash dash, and the consumer for OQ amount of commodity spends total amount of the money equal to. Price is what and what is the expenditure उन्होंने पूछा है. Price is what
एंड फॉर OQ आउटपुट ही इज रेडी टू स्पेंड हाउ मच, वो कितना स्पेंड कर रहा है, ABCD बोलो जल्दी। अभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। प्राइस इज OP and quantity is OQ. So this is the expenditure. OPRQ. OP is the price and POQR is the expenditure. So this is your expenditure. ये आपका पूरा ये पूरा आपका यूटिलिटी है। वो यूटिलिटी पाने के लिए आपको इतना खर्चा करना पड़ रहा है। आपका बेनिफिट कितना है, सरप्लस। क्वेश्चन इज इन द अबव फिगर द कंज्यूमर सरप्लस इज शोन बाय विच एरिया, ABCD। कंज्यूमर सरप्लस ट्रायंगल होगा अगर बहुत ही बुरे दिन है आपके तो DPR। ठीक है, आपके नोट्स में लिखते चलो, आंसर को टिक मार करते चलो। ठीक है, आगे। गुड। नाउ दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन जो अभी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, जिनको अच्छा अब दिखेगा शायद से, दिस इज P1 P2, दिस इज P3, A B C D, Q1, sorry, let me check, this is Q3, Q2, दिस इज Q1, मतलब ये P1 रहेगा, मतलब ये P3 रहेगा। लेट मी चेक, वो है ना डायग्राम ठीक से प्रिंट नहीं हुई है। आई कैरी बुक्स अलॉन्ग विथ मी। सरप्लस है ना, कंज्यूमर सरप्लस। सो यस, P3 P1, अच्छा ये वाली डायग्राम है वो। ठीक है, ये वाले डायग्राम में P3 P1 P2, P3 P1 P2। ठीक है, हाँ देखो। नाउ द क्वेश्चन इज इन द अबो डायग्राम द कंज्यूमर सरप्लस एट ए प्राइस ऑफ P1 इक्वल टू द एरिया। जब प्राइस P1 है तो व्हाट इज द कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया अबो प्राइस लाइन बिलो MU। तो व्हाट विल बी योर सरप्लस, बोलो ABCD। व्हाट विल बी योर सरप्लस व्हेन प्राइस इज OP1? प्राइस लाइन के अबो एंड यूटिलिटी कर्व के नीचे। सो विच इज दैट एरिया? A P1 C, ऐसा कोई है क्या? A P1 C, आंसर इज A। ठीक है, नेक्स्ट आगे। आगे क्या पूछा, पढ़ो। इन द अबो डायग्राम when the price of the commodity decreases from P1 to P2, जब प्राइस डिक्रीज हो गई मतलब न्यू कंज्यूमर सरप्लस इसके ऊपर रहेगा, बराबर। क्वेश्चन इज द गेन इन द कंज्यूमर सरप्लस। दे आर नॉट आस्क यू कंज्यूमर सरप्लस कितना है, दे आर आस्क कंज्यूमर सरप्लस में गेन कितना है। गेन इन द कंज्यूमर सरप्लस देखो, when price was OP1, when price was OP1 this was surplus, ये सरप्लस था। now when price is this OP2 कम हो गई, जब प्राइस कम होगी तो सरप्लस विल इंक्रीज। नाउ दिस इज also included in the surplus. So what is, they will ask you what is, right, gain? Gain is P1 P2 C and D लिखा होगा उन्होंने। ठीक है, P1 P2 D C is the answer।
एक्चुअली ये डी नहीं होना चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक, यहां तक ये आंसर होना चाहिए, डी पॉइंट नहीं लेना चाहिए, यहां तक ये आंसर होना चाहिए, बट उन्होंने लिखा नहीं है, तो वन ऑफ दोस ऑप्शन मैंने फिर राइट सी ऑप्शन चूज किया है। आगे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सो प्राइस कम हो गई, कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हो गया। आगे देखते हैं, in the above diagram, when the price of the commodity rises from P1 to P3, the loss in the consumer surplus, सरप्लस कितने से डिक्रीज हो गया, जब प्राइस P1 से P3 हो गई, तो लॉस इन द कंज्यूमर सरप्लस इज दिस एरिया, P1 P3 BC, P1 P3 BC, ठीक है। आगे द कंज्यूमर सरप्लस एट ए प्राइस P1, प्राइस P1, consumer surplus at a price P1 is dash dash than the consumer surplus at price P2. P1 का सरप्लस P2 से ज्यादा रहेगा कम रहेगा, व्हाट यू थिंक? P1 का सरप्लस P2 से ज्यादा रहेगा कम रहेगा? P1 is costlier than P2, प्राइस P1 is more than प्राइस P2, so जितना ज्यादा प्राइस उतना कम सरप्लस, समझ में आ रहा है? सो P1 का सरप्लस P2 से कम रहेगा, however if you compare with P3 it will be more, so the consumer surplus at a price P1 is less than P2 but greater than, यहां पे P3 होना चाहिए, P3 वहां पे चेंज कर दो, वहां पे P3 होना चाहिए आपके बुक में, ठीक है, ठीक है, P3 होना चाहिए। आगे मुझे चेंज करना है, मैं मेरे इधर चेंज करूंगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So these two examples are really good. आगे if anyone has doubt please ask me, if anyone has doubt please ask me, this is surplus, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। एक सेकंड ना, मुझे पानी पीने दो। इफ एनीवन हैज क्वेश्चन तब तक पिंग करो। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट लॉ, ठीक है। दैट लॉ इज नॉट इन डीप बट उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो अभी हमने क्या देखा, यूटिलिटी एनालिसिस में हमने देखा, अच्छा व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डीएमयू, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डीएमयू। 12th में जो है वही है, सबसे पहले हॉबीज। इन केस ऑफ ए हॉबी लाइक आई लाइक टू लिसन टू द म्यूजिक, एंड अगर कोई सॉन्ग मुझे पसंद है तो आई विल कीप ऑन listening to that song again and again and again and again. Actually that gives me more and more satisfaction. In that case law of DMU does not apply. Actually if I listen it for second time or third time or fourth time, my utility should decrease, but actually वैसे होता नहीं। So hobbies, listening to the song, reading, all those are the hobbies actually, right? Collection of the rare coins, उनके केस में every additional unit will give more happiness, more satisfaction, more utility, and therefore those are exceptions to the law of DMU.
The irrational persons like drunkard, misers, right? ड्रंकार बोल सकता हूँ, माइजर बोल सकता हूँ, और कौन आता है उसमें? उनके लिए भी दिस लॉ इज not applicable because every unit, every additional peg will give more satisfaction to the drunkard. And miser does not want to expend, he does not want to spend the money. तो उस पे लॉ कहां से अप्लाई करेंगे? यही तो पहला क्वेश्चन है. माइजर राइट के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है. This law is also not applicable to indivisible items. That is an exception. Law is not applicable to prestigious goods. So अभी तक हमने क्या बोला? हॉबीज, लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग, राइट, कलेक्शन ऑफ द रेयर कॉइन्स, दे आर ऑल हॉबीज. आप उसको हॉबीज में डाल सकते हो, ठीक है. इरेशनल पर्सन्स लाइक माइजर्स, ड्रंकार्ड्स, वो भी एक्सेप्शंस होते हैं. उसके बाद मनी, मनी एंड पावर बोथ आर, पावर मींस अधिकार, राइट्स. समझ में आ रहा है? सो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्शन because a person, if he gets more money, he becomes more and more happy, more and more satisfied. वो नहीं बोलता यार यूटिलिटी खत्म हो गया अब नहीं चाहिए. He still wants more and more money. So can I say money is an exception to law of DMU? Obviously. Then even power, like कोई एक ऑफिसर है या कोई पॉलिटिशियन है, उसको जितने पोर्टफोलियोज मिले उतने उसको कम है. He wants to be on a higher position again, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर. Power can be an exception to law of DMU. So these are some of the exceptions. जो 12th में वही exceptions है. मॉड्यूल में कुछ इतने elaborate नहीं किए, एक दो लाइन में खत्म किए उन्होंने, ठीक है. So these are exception to law of DMU. Actually, they are not exception to law of DMU because they violate some of the basic assumptions of law of DMU. Like irrational persons, drunkard, miser, right? They violate the assumption of rationality. Then collection of the rare coins, listening to the music, reading the books, hobbies, they violate the assumption of, right, homogeneity. Like we don't listen a single song again and again, we keep on listening to different songs. A person does not collect the same coin again and again, he collects the different coins. If a scholar does not read a single book again and again, he keeps on reading multiple books. So homogeneity concept follow nahi hoti. Are you getting my point? So that is, so we are violating the assumption of homogeneity. Money, हम एक assumption लेके चल रहे हैं money के केस में कि the utility of the money will remain same. Actually, money is an exception. So it violates the assumption of constancy of the marginality of money. Power, the person who wants more and more of power, he is violating the assumption of rationality. Miser, drunkard, rationality का assumptions violate कर रहे हैं. Divisible goods को लिए law applicable है, individual goods के लिए नहीं. So we are violating the assumption that this law is applicable only to divisible goods. Again, we are violating. So to be very frank, these are not exact exceptions. They violate the basic assumptions of the law. So these are the, right, what I will say. Exception to law of DMU. मतलब उनके केस में law of DMU कर्व upward sloping रहेगी. Means as consumption increases, utility increases. Upward sloping, right, utility curve is an exception to law of DMU. आगे, what are its uses? First, it helps you to understand the paradox between value in use versus value in exchange. Value in use versus value in exchange. Value in use means utility. Value in exchange is
price. Some commodities are very, very useful, like water, oxygen. They are very, very important. Their value in use is very large. However, their value in exchange is very less. उनकी प्राइस बहुत कम है because they are abundantly available. On the contrary, the prestigious goods like diamond, उसको water diamond paradox भी बोला जाता है, लिख लेना. It helps you to understand importance. First, it helps you to understand value in use versus value in exchange paradox और water diamond paradox. ये 12th में भी था. So, on the contrary, diamond, right, has very less value in use. उसका यूज इतना कुछ नहीं है. However, it command very high value in exchange. वो प्राइस बहुत हायर कमांड करता है because it is not easily available. स्केयर है वो. So, लॉ ये हमें ये समझाता है कि अगर कोई चीज बहुत इजीली अवेलेबल होती है तो उसका यूज कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, उसकी प्राइस कम ही रहेगी. ऑन द कॉन्ट्ररी, जो चीज भले उसका यूज ना हो बट वो इजीली अवेलेबल नहीं होती है, in that case it will command higher price, right? So we should not, right, think कि like पेट्रोल इन सऊदी, वहां पे पेट्रोल बहुत इजीली अवेलेबल है, यूज भी बहुत है उसका, उनको वैल्यू इन यूज बहुत है बट वैल्यू इन एक्सचेंज वेरी लेस बिकॉज वहां पे वो कॉमन है. बट इन इंडिया द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज हाई बिकॉज यहाँ पे वो इजीली अवेलेबल नहीं है. सो जनरली हम बोलते हैं कि जितनी ज्यादा यूज, जितनी ज्यादा वैल्यू इन यूज उतनी ज्यादा वैल्यू इन एक्सचेंज होती है. ऐसे हम बोलते हैं. क्या? जितना ज्यादा यूजफुलनेस उतनी ज्यादा उसकी प्राइस. एग्जांपल, आईपीएल में एमएस धोनी कमांड्स हाईएस्ट प्राइस बिकॉज उसकी वैल्यू इन यूज सबसे ज्यादा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. उसकी वैल्यू इन सबसे ज्यादा, इसलिए उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज भी ज्यादा है. इज ए गुड बैट्समैन, गुड लीडर, राइट, गुड मोटिवेटर, everything in like एक one package MS धोनी. Try to understand. But MS धोनी बहुत कॉमन होता, उसके जैसे सब प्लेयर होते तो उसकी, राइट, भले उसका यूज ज्यादा है बट इजीली अवेलेबल है तो उसकी प्राइस कम हो जाती. Try to understand. जनरली वी से अगर वैल्यू इन यूज ज्यादा होगी तो वैल्यू इन एक्सचेंज भी ज्यादा होगी, प्रोवाइडेड इट इज नॉट स्केयर, इट इज नॉट इजीली अवेलेबल. एंड इफ वैल्यू इन यूज कम होगी तो वैल्यू इन एक्सचेंज भी कम होती है जनरली. हाउएवर इफ दे आर इजीली अवेलेबल तो ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होती. जैसे वाटर के केस में वैल्यू इन यूज इज वेरी हाई, ऑक्सीजन के केस में वैल्यू इन इज वेरी हाई बट वो इजीली अवेलेबल है इसलिए इट डज नॉट कमांड द प्राइस. ऑन द कॉन्ट्ररी, डायमंड इवन दो इट्स वैल्यू इन इज वेरी नील, ऑलमोस्ट नील, फिर भी उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है बिकॉज वो अवेलेबल नहीं होता. सो इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ वाटर एंड डायमंड, वाटर डायमंड पैराडॉक्स. सेकंड, it is useful for the consumer. Why? Because consumer keeps on equating price with the utility and consumer tries to be in equilibrium. So consumer will buy as long as he is getting more utility than what he pays for it, as long as mu is greater than price, and consumer will stop the consumption when his utility mu equates with the price. So whether to buy or not to buy, ये डिसीजन अगर कंज्यूमर को लेनी है तो दिस लॉ इज वेरी हेल्पफुल टू हिम. तो कंज्यूमर के लिए हेल्पफुल है. इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स बिकॉज दे नो दिस टेंडेंसी ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर विल बाय ओनली इफ he gets more utility than what he pays or he gets equal utility, right, to what he pays. अगर उसको कम utility मिलेगी than what he pays, he will not buy. And therefore, in order to sell the products, they will try to add utility to the product. अगर उनको प्राइस सेम रखनी है तो they have to add the utility. अगर उनको प्राइस सेम रखनी है तो they have to add the utility, then only consumer will buy. अगर they cannot add the utility, they should decrease the price. आप अगर कस्टमर को बाय करने के लिए आपको बोलना है
तो he has two options. One, give the utility, and दूसरा option, right, decrease the price. Like example, Ekatom and others. पुणे में there are classes, that is also a fact, जो फाउंडेशन 10-15 हजार में भी लेते हैं, but they don't give the utility, and we charge a good fees. Still student take admission. Reason is very simple, right? They know आपके पास दो ऑप्शंस है, हर सेलर के पास दो ऑप्शन है, keep higher price and give higher utility, and दूसरा keep lower price and don't give the utility. We are opting the first option. We are keeping the price and we are also giving the utility, and हम उस पे ही काम करते हैं. कम प्राइस में ज्यादा यूटिलिटी नहीं मिलेगी. Obviously there should be incentive to the seller as well. So what I want to tell you, right, it is helpful for the seller, right? अगर उसको कंज्यूमर को बाय करवाना है तो उसके पास दो ही ऑप्शन है. एक ऑप्शन है at a same price he should create more utility to the consumer, then only he will buy, or he should give the discount. So it is helpful to the producers and sellers as well. It is also useful to the government. कैसे गवर्नमेंट के लिए यूजफुल है? बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू लेवी द टैक्सेस. गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाती है, डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, दे अंडरस्टैंड दैट एज कंपेयर टू पुअर, rich has less utility from the money and they will be easily paying the taxes. However, if they impose the taxes on the poor for whom the utility of the money is very high, they won't give the taxes, and therefore like जो rich है उनको ज्यादा taxes लगाए जाते हैं than the poor. This is also based on the concept of DMU, like marginal utility. Then और किसके लिए? और आप it is useful for the government for the tax, like taxation purpose वगैरह. ठीक है. लेट मी चेक अगर कुछ मॉड्यूल में अलग से कुछ पॉइंट दिया है तो. आई मीन यूर बोथ लॉ ऑफ डीएमयू एंड कंज्यूमर सरप्लस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दिस पीपल. ठीक है. अगर कोई सेलर अपने कंज्यूमर्स को सरप्लस दे नहीं रहा है, कंज्यूमर्स विल नॉट कम अगेन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. कुछ अलग है? यस. एक और चीज है, whenever we go for something, try to understand मैं क्या बोल रहा हूं. Whenever we take some decision, we take cost benefit decision. लिख लेना, right? Cost benefits मॉड्यूल में लिखा है. लेट मी चेक दैट. यस. कोई हमें बड़ी डिसीजन लेनी है. एग्जांपल मैं बोलता हूं, एक गुजरात में एक स्टैचू बना है. देखो कौन सा स्टैचू है, उसका नाम क्या है? आई डोंट नो, राइट? कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, बराबर ना? उसका कॉस्ट कितनी हेवी है. तो देयर वर मेनी पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग दैट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी ऑन बिल्डिंग द स्टैचू देन बिल्डिंग द रोड्स एंड एवरीथिंग. द गवर्नमेंट केम विथ एन लाइक कमेंट दैट ये जो खर्चा है उससे ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा एंड उससे ज्यादा उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. सो दे आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑन building that statue that will create tourism, that will create employment for those people, and उससे जो revenue मिलेगा that will be more than the cost that you have incurred over a period of time. 2-3 साल में वो बोल रहे हैं कि ब्रेक इवन हो जाएगा. ब्रेक इवन हो जाएगा मतलब कॉस्ट रिकवर हो जाएगी. When you recover the cost, उसको ब्रेक इवन बोला जाता है. नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन को ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है. बीईपी पॉइंट, बीईपी लिख लेना. नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन इज ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है. इन इंटर यू विल लर्न इन कॉस्टिंग कि ब्रेक इवन सेल्स ढूंढना होता है, ब्रेक इवन क्वांटिटी ढूंढनी होती है, राइट? जहां पे हमारा प्रॉफिट जीरो हो जाता है, मतलब हम लॉस में भी नहीं प्रॉफिट में भी नहीं, वो वाली सिचुएशन इज अ ब्रेक इवन सिचुएशन. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. ऐसे केसेस में इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो हम देखते हैं उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी एंड हमें कितना बेनिफिट मिलेगा. सो वी आर चेकिंग द मार्जिनल कॉस्ट. हमें कितनी एडिशनली कॉस्ट डालनी पड़ रही है
और हमें कितना बेनिफिट मिलेगा. So indirectly we are comparing the utility with the price. So cost benefit analysis is nothing but this. So yes, लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने के लिए हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, कितना कॉस्ट लगेगा कितना बेनिफिट, राइट. एंड दिस लॉ इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड, और कंज्यूमर सरप्लस इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड दिस. देन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं भूल गया, लिख लेना. इन केस ऑफ नेसेसिटीज, लिख लेना, नेसेसिटीज के केस में कंज्यूमर सरप्लस इज इनफाइनाइट. एंड इसको हाईलाइट करके रखना, इंपॉर्टेंट. इन केस ऑफ नेसेसिटीज कंज्यूमर सरप्लस इज, राइट, इनफाइनाइट. मींस नेसेसिटीज के लिए यू आर रेडी टू पे एनीथिंग. नेसेसिटीज के लिए आप कितना भी पे करने को रेडी हो, बट एक्चुअली नेसेसिटीज बहुत कम दाम पे मिलती है. सो यू आर रेडी टू पे ए लार्ज अमाउंट, but you have to pay very less amount. Therefore consumer surplus is infinite. This is very hot favorite question. Then okay, yes, हमने एक assumption देखा था कि utility analysis, utility is independent of substitutes and complementary goods. Actually ऐसे नहीं है. Utility do gets affected by the availability of the substitutes and कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. मैंने चाय का एग्जांपल दिया था, चाय के साथ अगर बनबस्का मिलता है तो यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी. सो एबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डू इम्पैक्ट द यूटिलिटी. मैंने चाय के साथ कंपेयर किया था कॉफी. कॉफी विल गिव मोर यूटिलिटी, राइट. सो सब्स्टिट्यूट्स डू चेंज, राइट, द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी. On similar basis, ability of the substitutes and the complementary goods obviously will change the consumer surplus. Then आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. जो जो मॉड्यूल में वो भी मैंने सब पॉइंट्स कवर किए, ठीक है. थ्योरी पॉइंट्स भी मैंने सब कवर किए इन रिस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. सो व्हाट वी लर्न, राइट, डीएमयू एंड उससे कंज्यूमर सरप्लस. नाउ हमने डीएमयू में क्या स्टडी किया, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कमोडिटी. सो व्हाट इज आवर assumption? Our assumption is the consumer is spending his entire income to satisfy single bond. He is buying a single commodity. Actually that is not the case. Why that is not the case? Because consumer actually wants to satisfy multiple wants at a given point of time, and he tries to spend his income not on a single commodity but on different commodities. So law of DMU सिंगल कमोडिटी अप्रोच है. मैंने पहले लिख के दिया था, अगर याद रहेगा तो. कल मैंने बोला था लॉ ऑफ DMU इज वन कमोडिटी मॉडल, is one commodity model. However, consumer is willing to buy multiple units. Then how he will achieve the equilibrium? उसके लिए लॉ है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटीज. लिख लेना, राइट. लिमिटेशन ऑफ, राइट, DMU. वो लिमिटेशन की वजह से EMU लॉ मिला है. Limitation of DMU. It studies equilibrium, consumer's equilibrium, assuming he spends his entire income on single commodity. Actually, he spends, एक्चुअली ऐसे होता है क्या? नहीं, बहुत स्क्रीन लैग हो रही है, बहुत ही लैग हो रही है. आई डोंट नो व्हाई. मॉर्निंग में नहीं होता है, इवनिंग में मे बी थोड़ा फार. आई नीड टू सॉर्ट इट आउट, ठीक है. एक्चुअली
he spends his income on multiple commodities. मल्टीपल कमोडिटीज, ठीक है. And then how to derive his equilibrium, right? We have to follow law of EMU, equi marginal utilities. Equi marginal utility or utilities. This law says consumer should spend his entire income on different commodities in a such a way that the ratio of utility to the price of the commodity is same. क्या बोला मैंने? Consumer should spend his income on different commodities in a such a way that the ratio of utility to the price is same. That is, लिख लेना, if consumer is spending his income on 3 commodities, एग्जाम्पल के तौर पे on 3 commodities X, Y and Z. We having prices, right? X, Y, Z. Then he will be in equilibrium. In equilibrium, when लिखो marginal utility of commodity X upon price of the commodity X is equal to marginal utility of Y, commodity Y upon price of Y is equal to marginal utility of commodity Z upon price of Z. He should spend his entire income in a such a way that the ratio of utility to the price remains constant. अलग अलग तीन कितने, या आप ऐसे लिख सकते हो, जितने यूनिट्स होंगे उतने, लाइक एक्स वाई जेड जितने कमोडिटीज लेना, spent in a such a way that the marginal utility from the commodities divided by their price, ये जो रेशियो मिलेगा that should be same. Doing this, he will spend his entire income and his total satisfaction will be maximum. By doing this, right, his entire income will get spent and his satisfaction will be the maximum. ठीक है? So ये वाला फॉर्मूला हम ऊपर लिखना होगा इनिशियल में. मैंने लाइन छोड़ने को बोला था, देखो कहां पे था वो, हाँ, जहां पे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था. क्या लिखा था? हमने लिखा था कार्डिनल मेजरमेंट अप्रोच में गिवन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, सिंगल कमोडिटी के लिए लॉ ऑफ डीएमयू एंड मल्टीपल कमोडिटीज के लिए लॉ ऑफ ईएमयू, एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या रहेगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स अपॉन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स is equal to marginal utility of commodity Y upon price of Y, right? Like that. I can also write this
marginal utility of x upon marginal utility of y is equal to price of x upon price of y. Therefore, you will also find that they say a consumer should spend his entire income on different commodities in such a way that ratio of the utilities is equal to ratio of their prices. Ratio of the utilities should be equal to ratio of the prices. Single commodity के लिए equilibrium is mu is equal to price. यहाँ पे लिखा है देखो लेफ्ट हैंड साइड पे mu is equal to price. मल्टीपल commodities के लिए right mu upon price of different commodities. ठीक है? So I won't go in detail because ये हमारे खाली हमें फॉर्मूला उन्होंने दिया है राइट, उन्होंने अंदर नहीं गए. डेरिवेशन में कर सकता हूं बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, आगे देयर वाज वन क्वेश्चन आई थिंक जो मुझे कवर करना है रिलेटेड टू दिस. यस, अगेन दिस इज गुड क्वेश्चन. ऑलवेज कीप नोट्स विथ यू. नाउ आई रिमेंबर द क्वेश्चंस, मुझे क्वेश्चन भी याद हो चुके हैं. दिस इज रिलेटेड टू EMU. Question number 339 to 341. Price of commodity X is 2, price of commodity Y is 1, and the income is 12. So they have to spend rupees 12 in a such a way that their satisfaction will be the maximum. They are given a quantity 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह. Marginal utility of X means if you buy one commodity of X, you will get 16 satisfaction, and if you buy one commodity of Y, you will get 11 rupees, 11 का satisfaction. You have to buy both. आप एक ही buy नहीं करोगे, एक ही buy करोगे तो आप DME में हो. You have to buy both. At least एक तो चीज आपके पास होनी चाहिए, दोनों की quantity एक तो होनी चाहिए. If you buy two commodities of X, second commodity of X, you will get 14 satisfaction from that, and if you buy second commodity of Y, you will get 10 satisfaction. Now the question is, how many units of X and Y the consumer will buy in order to maximize the utility? He should buy that much, where marginal utility of X upon price of X is equal to marginal utility of Y upon price of Y. ठीक है, अब हम यहां पे ढूंढने का ट्राई करते हैं. मैं ये ऊपर ढूंढता हूं, पेस्ट. So ले लो, price of X is 2, so 16 upon 2 8, 14 upon 2 7, 12 upon 2 6, 5 4 3 2 1. मैंने क्या किया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपन प्राइस ऑफ X. अच्छा, अब दूसरा ढूंढते हैं. मैं यहां पे लिखता हूं, मेरे पास स्पेस उतनी है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपन प्राइस ऑफ Y. व्हाट इज द प्राइस ऑफ Y? 1. सो किसी को भी 1 से डिवाइड करो, सेम रहेगा. सो दिस इज 11, 11 upon 1 11, 10 9 8 7 6 5 4. बराबर. So now you got marginal utility of X upon price of X, marginal utility of Y upon price of Y. Equal कहाँ पे देखते हैं? This can be 1. ये वाला कॉम्बिनेशन 8 is equal to 8. मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान देना. प्लीज पे 100% अटेंशन. कॉम्बिनेशन ए मिल गया. कौन सा? 8 वाला. 8 is equal to 8. इन विच X कितने परचेस करने, Y कितने परचेस करने. ध्यान देना, X परचेस करने हैं 1 यूनिट एंड Y परचेस करने 8 यूनिट्स. सॉरी, यूनिट्स ना, यूनिट्स. अच्छा, X परचेस करने 1 यूनिट एंड Y परचेस करने हैं 4 यूनिट्स. X परचेस करने 1 यूनिट और ये 4. ठीक है, देखते हैं दूसरा क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा. हाँ, आप
क्वेश्चन आंसर टू क्वेश्चन जा सकते हो, बट मैं समझा रहा हूं, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं. सेकंड 7 7 भी हो सकता है. यस, 7 7 भी हो सकता है. इन विच 2 units of x, b combination 2 units of x and 4 units of, नहीं 4 नहीं, फिर कुछ तो गलत हो रहा है मेरा. हाँ, 5 units of y. 5 units of y. तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है 6 वाला, जिसमें 3 units of x एंड 6 units of y चाहिए. एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है ये वाला, राइट. 5 units of x एंड ये वाला 7 units of, ये वाला लेना होगा हमें. 5 units, 5 इक्वल हो रहा है ना, मतलब x के 4 units एंड y के 7 units. एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है 4 वाला, ये मतलब 5 units of x एंड 8 units of y. देयर आर बेसिकली, जहां पे mu, ध्यान देना, mu of x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू mu of y अपॉन प्राइस ऑफ y. ये आपको 5 जगह पे इक्वल मिले, a b c d e. 1 unit of x एंड 4 units of y वहां पे इक्वल है. 2 units of x, 5 units of y, 3 units of x, 6 units of y, लाइक दैट. हम देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर कितना है. वी हैव 12 रुपीज. हम 12 से कम भी नहीं खर्चा करना है, 12 से ज्यादा भी खर्चा नहीं करना है. सो एक यूनिट की प्राइस 2 है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1. y की प्राइस 1 है, सो यहाँ पे 6 रुपीज स्पेंड हो रहे हैं, विच इज लेस देन 12, तो हमें फॉलो नहीं करेंगे. यहाँ पे देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 रुपीज स्पेंड ऑन x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 रुपीज की इनकम स्पेंड हो रही है, जिसलिए बी भी नहीं लेंगे. सी देखते हैं. सी के केस में 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी प्राइस इज 2 ना. हाँ, 6 रुपीज एक्स पे स्पेंड हो गए, 6 यूनिट्स परचेस किए ऑफ 1 इज 6 रुपीज वाई पे, टोटल 12 रुपए खर्च हो गए. माई आंसर शुड बी दिस. देन आगे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 रुपीज ऑन एक्स, 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 रुपीज ऑन वाई. इनकम इज 15 विच इज आउट ऑफ माई बजट. मेरी इनकम इज जस्ट 12, एक्सपेंडिचर 15 हो रहा है, मेरे पास 12 रुपीज है, सो आई कैनॉट गो फॉर दिस. इवन आई कैनॉट गो फॉर दिस. So what is the equilibrium? Right? 3 units of x, 6 units of y. Answer is 3 units of x, 6 units of y. So buy 3 units of x, spend 6 rupees. Buy 6 units of y, spend 6 rupees. Total 12 रुपए हो गए. And the satisfaction will be maximum. What will be the total utility received by the consumer from the above commodities? तो हमने डिसाइड क्या किया? हमारा डिसीजन क्या हुआ? Let me check. Okay. Our decision is 3 units of x and 6 units of y. 3 units of x मतलब इनकी इतनी यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी, एंड 6 units of y इतनी यूटिलिटी. सो टोटल ले लो कैलसियम है 16 प्लस 14 प्लस 12. x से टोटल 42 रुपीज की यूटिलिटी मिलेगी, और यहां से कितनी मिलेगी 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6. इससे 51 रुपीज की यूटिलिटी मिलेगी. 3 units of x will give me 4 rupees utility, total utility, and 6 units of y will give me 51 rupees utility. So total utility कितनी हो गई 93.
आंसर इज 93. टोटल यूटिलिटी 93, मतलब 12 रुपए स्पेंड करके योर 12 रुपीज इनकम. Spend 12 rupees on X and Y in a such a way that your total utility will be maximum 93 rupees. Buy 3 units of X, buy 6 units of Y with rupees 12, your satisfaction will be 93, which is maximum. The question, next question, how much of the income, how much of the total income will the consumer spend on good X and good Y? X पे 3 units purchase के X के multiply by 2 rupees, 6 rupees for X, 6 units Y के purchase किया 1 rupee each. So Y पे 6 rupees, 6 and 6, answer is B. Again, this is good question. एक ही क्वेश्चन है EMU का, and this is the question. अगर ये किसको नहीं समझा तो प्लीज आस्क मी. अगर ये नहीं समझा तो पूछो मुझे. अरे 341 नहीं, 341 इज, अरे ए होगा तो यू आर स्पेंडिंग जस्ट 12 रुपए. इफ योर आंसर इज ए, यू आर स्पेंडिंग ओनली 12 रुपीज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर स्पेंडिंग जस्ट 9 रुपीज ना, यू आर टू स्पेंड 12 रुपीज. सो जो भी आपके पास ऑप्शंस है उसमें 12 आंसर कहां पे है? एक ही ऑप्शन है आपके पास जिसमें आंसर 12 है, वो बी है. आंसर इज बी. यू आर बाइंग 3 यूनिट्स ऑफ एक्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज, एक 2 रुपीज का है, 6 एक्स पे, वाई पे 6 रुपीज. यू कैन गो फ्रॉम आंसर टू क्वेश्चन, मुझे प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. बट मैं समझा रहा था कैसे ढूंढ सकते हो. सो व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड द पी mu of x अपॉन प्राइस ऑफ x, mu of y अपॉन प्राइस ऑफ y. फिर वो कॉम्बिनेशन ढूंढो जहां पे दोनों इक्वल होते हैं. सो यू विल गेट मल्टीपल कॉम्बिनेशंस. उसमें से वो कॉम्बिनेशन ढूंढो जो आपके इनकम में बैठ रहा है. एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम इज ओनली वन, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी मोर देन वन. सो एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जहां पे आपकी वो इनकम में भी बैठेगा, एंड वो कॉम्बिनेशन विल गिव यू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. हाँ, उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सकता है बट वो आपके बजट में नहीं होगा. विद इन योर बजट वो कॉम्बिनेशन आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा. समझ में आ रहा है? जब हम कोई चीज लेने जाते हैं और सेलर बोलता है ये आपके बजट में सबसे बढ़िया चीज है, ऐसे नहीं कि वही आपके बजट में उससे अच्छी भी चीज है बट वो आप आउट ऑफ बजट है. समझ में आ रहा है? सो विद इन योर बजट, राइट, that will give you maximum satisfaction. In this example it is 93. ठीक है. So this was, right, law of EMU. EMU is used to find out the equilibrium when a consumer spends income on more than a commodity, that is more than one commodity. ठीक है. So यहाँ पे हमारा law of DMU, consumer surplus and EMU खत्म हुआ है. EMU they have done just in 1 or 2 lines, not more than that. ठीक है. कंज्यूमर सरप्लस डन. अब नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेक द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. ये चैप्टर खत्म होने पे, दैट इज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, जो मैं मंडे को लेना स्टार्ट करूंगा. मंडे ट्यूसडे इंडिफरेंस कर्व खत्म हो जाएगा. 2 लेक्चर्स लगेंगे, 3 घंटे. मैं इंटायर इन डिटेल कंप्लीट करूंगा एंड देन योर चैप्टर नंबर 2 विल गेट ओवर. तो पकड़ के चलो कि नेक्स्ट संडे, उसके आने वाले संडे पे यू हैव टू अपीयर 100 मार्क्स टेस्ट, 100 मार्क टेस्ट ऑन चैप्टर नंबर 2. द टेस्ट विल बी टाइम बाउंड. मैं अलग सॉफ्टवेयर पे टेस्ट लेने वाला हूं. इट विल बी हैविंग नेगेटिव मार्किंग सिस्टम एंड एवरीथिंग. ठीक है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. चैप्टर नंबर 2 आई विल मंडे ट्यूसडे आई विल कवर इंडिफरेंस कर्व. उसके बाद आई विल कवर डिमांड फोरकास्टिंग. नेक्स्ट 3 डेज में हमारा पूरा चैप्टर डन हो जाएगा. ठीक है. एंड ऑन कमिंग संडे, ये ऑब्वियसली नेक्स्ट संडे, कमिंग संडे टुमारो, राइट, नेक्स्ट संडे को यू हैव टू राइट ए पेपर ऑफ 100 मार्क्स ऑन टेस्ट नंबर 2. टाइम बाउंड टेस्ट रहेगी, विथ नेगेटिव मार्किंग रहेगी. यू विल गेट इंस्टेंट रिजल्ट, नो डाउट एट ऑल, बट विथ नेगेटिव मार्किंग रहेगा. ठीक है. सो आई एम वर्किंग ऑन दैट सॉफ्टवेयर और मेरा ऑलमोस्ट टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है. सो राइट, नेक्स्ट
संडे को जो भी टेस्ट रहेगी मेरी वो वैसे रहेगी, ठीक है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, डोंट वेस्ट द टाइम। थैंक यू। हाँ, yes, you, if anyone has doubt, always call me. Thank you.